Good morning, dear students. Today we'll discuss about the hypoglossal nerve. Hypoglossal nerve is 12th cranial nerve. Leading to the tongue. It gives supply to the tongue. This nerve arises from hypoglossal nucleus and emerges from medulla oblongata in the anterolateral or pre-olivary sulcus, separating the olive and the pyramid by 10 to 15 rootlets. There are 10 to 15 rootlets to which it arises. कहाँ से निकल रही है? मेडुला ऑब्लोंगाटा से. इसकी न्यूक्लियाई कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में है और एंटीरोलैटरल सल्कस के थ्रू निकल रहे हैं फाइबर्स. 10 to 15 rootlets arise from the anterolateral sulcus या फिर प्री ओलिवरी सल्कस. बिटवीन पिरामिड एंड ओलिव, पिरामिड और ओलिव के बीच में जो सल्कस है उससे निकल रही है. It then passes through the hypoglossal canal. पहले तो न्यूक्लियाई मेडुला ऑब्लोंगाटा में है, फिर वहां से फाइबर्स आ रहे हैं. फाइबर्स पास हुए एंटीरोलैटरल सल्कस अब द मेडुला ऑब्लोंगाटा से और फिर यहाँ से हाइपोग्लॉसल कैनाल में जाती है. ये passes through hypoglossal canal. The rootlets of the hypoglossal nerve are attached in line with the rootlets of the first cervical spinal nerve. ये एंटीरोलैटरल सर्कस में देखिए अगर ऊपर से नीचे तो ये इनकी पोजीशन वहीं पर है, ऊपर है जहां पर C1 स्पाइनल नर्व फाइबर अटैच है. इसीलिए इस नर्व के साथ में C1 के भी फाइबर्स जाते हैं. Rootlet of the hypoglossal nerve are attached in line with the rootlets of the first cervical spinal nerve. तो C1 नर्व होती है, उसके फाइबर भी इसी के साथ ही जाते हैं. It supplies motor fibers to all the muscle of the tongue. Hypoglossal gives supply to the all muscle of the tongue except कौन है? Palatoglossus muscle, which is innervated by cranial part of accessory nerve, vagus nerve. Which is innervated by vagus nerve. According to some classification by the fibers from the glossopharyngeal nerve, ninth cranial nerve, that hit height with the vagus. तो ये है वेगस के थ्रू सप्लाई होती है. इसमें कुछ फाइबर ग्लोसोफेरिंजियल की भी होते हैं. तो ये पैलेटोग्लॉसस की सप्लाई से होती है मेनली वेगस. The hypoglossal nerve is derived from basal plate of the embryonic medulla oblongata. Embryonic medulla oblongata के basal plate से. Functional component क्या है? Hypoglossal nerve has only a somatic motor component, that is general somatic efferent fiber, that supplies the extrinsic and intrinsic tongue muscle. The functional component, general somatic efferent. Here you can see this part is medulla oblongata. Here is pyramid, this is pyramid, this is olive, and here is nuclei, hypoglossal nucleus. You can see this is hypoglossal nucleus. यहाँ से fibers ऐसे आएंगे. These are the rootlets. ये rootlets है anterolateral sulcus में या sulcus between pyramid and olive. ये are pre-olivary sulcus. तो यहाँ से निकल रहे हैं ये. यहाँ से जाते हैं हाइपोग्लॉसल कैनाल में. ये देखिए, ये हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, यहाँ से हाइपोग्लॉसल नर्व, पिरामिड
और ओलिव के बीच से निकल रहे हैं। इसमें भी सेम, ये है हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। अगर ब्रेन में देखें तो इंफीरियर एस्पेक्ट में देखें तो ये है फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ, fourth cranial nerve, fourth cranial nerve. This is trochlear nerve, fifth cranial nerve. Here is abduction, sixth cranial nerve. This is seventh cranial nerve, eighth cranial nerve. Here are the ninth, 10th, 11th cranial nerve. And this, and the anterior lateral sulcus, this is 12th cranial nerve. इसलिए देखिए ये है हाइपोग्लॉसल नर्व, 12th cranial nerve. पूरे कोर्स को देखें तो ये कई सेगमेंट में बटा हुआ है। सेगमेंट ऑफ द हाइपोग्लॉसल नर्व, देखिए यहाँ से एक पार्ट तो मेडुला ऑब्लांगेटा में है, दैट इज मेडुलरी सेगमेंट। फिर यहाँ से जाता है, ये सिस्टर्न में जाता है, सिस्टर्नल सेगमेंट। फिर स्कल बेस में जाता है, स्कल बेस सेगमेंट। फिर कैरोटिड स्पेस सेगमेंट, फिर सबलिंगुअल सेगमेंट। इतने सेगमेंट हैं। मेडुलरी सेगमेंट क्या है? द फाइबर्स ऑफ द हाइपोग्लॉसल नर्व course anteriorly lateral to the medial lemniscus and lateral to the oblique. The hypoglossal nerve exits the medulla at the pre-olivary sulcus. अभी आप पहले देख चुके हैं कहाँ से रूट निकल रही हैं। ये है मेडुलरी सेगमेंट, ये है मेडुलरी सेगमेंट, ये है हाइपोग्लॉसल नर्व। अगर न्यूक्लियाई इसको वर्टिकली ट्रेस करें, इसको वर्टिकली ट्रेस करें ऐसे लेटरल व्यू में, ये निकल के ये आ रहा है हाइपोग्लॉसल नर्व। दूसरा है सिस्टर्न सेगमेंट। The hypoglossal nerve courses lateral to the premedullary cistern, posterior lateral to vertebral artery. It passes through the premedullary cistern. This vertebral artery है, यहाँ देखिए vertebral artery है, और ये है posterior lateral to vertebral artery. Vertebral artery, posterior lateral to vertebral artery. इसमें देखिए तो ये है प्री-ओलिवरी सल्कस, ये यहाँ से, और फिर यहाँ से इस पार्ट, यहाँ से यहाँ इस पार्ट इज द सिस्टर्नल सेगमेंट। उसके बाद बेस ऑफ स्कल निकला जाएगा। बाकी बेस ऑफ स्कल ये सबको सुप्रा हाइट कैरोटिड स्पेस सेगमेंट भी बोल सकते हैं। द हाइपोग्लॉसल नर्व लाइज डीप टू द इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड 9th and 10th cranial nerves. It becomes superficial as it courses anteriorly. At the level of angle of the mandible, here, it's looped anteriorly around the root of occipital artery and lying deep to the posterior belly of the digestive muscle. इसको देखते हैं ये यहाँ से ये निकल के आ रही है जी। दिस इज पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइजेस्टिक। यहाँ से पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइजेस्टिक है, यहाँ से निकल करके इसको क्रॉस करके जाए। Then sublingual segment. The hypoglossal nerve enters the sublingual space by crossing the lingual artery at the level of hyoid bone. Lingual artery को क्रॉस कर रहे हैं। The hypoglossal nerve lies superficial to hyoglossus muscle and deep to mylohyoid muscle. इस डायग्राम में देखिए तो ये है पोजीशन, हियर इज, ये है मिडलाइन सेक्शन। यहाँ देखिए तो ये है मिडलाइन, थोड़ा सा लेटरल साइड, ये पैरासोलेंटल सेक्शन है। ये हाइपोग्लॉसल नर्व है, ये हाइपोग्लॉसल नर्व हो गई। दिस इज पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइजेस्टिक हो गई, ये मसल है। ये देखिए ये माइलोहाइड मसल है, माइलोहाइड मसल की पोस्टीरियर बॉर्डर से सबलिंगुअल ग्लैंड, दिस इज सबलिंगुअल ग्लैंड, सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड।
तो ये हाइपोग्लॉसल नर्व है, हाइपोग्लॉसल नर्व। अब माइलोहाइड को हटा दिया है इसमें, और ये माइलोहाइड हटने के बाद ये है डीप पार्ट ऑफ दी सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और यहाँ पर देखिए ये हायोग्लॉसस मसल है, ये हायोग्लॉसस मसल के सुपरफिशियल है, ये हायोग्लॉसस मसल है, इसके सुपरफिशियल ये ग्लैंड आ रही है। ये पीछे जा रही ऑक्सीपिटल आर्टरी, ये यहाँ से टर्न होकर के ऐसे आई लूप बना करके फिर यहाँ लिंगुअल आर्टरी को क्रॉस करती है, फिर ये यहाँ पर इसका सब लिंगुअल बिलो द टंग। तो रिलेशन है सुपरफिशियल टू हायोग्लॉसस मसल। ये हायोग्लॉसस मसल क्रॉसेस सुपरफिशियल टू हायोग्लॉसस। हायोग्लॉसस मसल के सुपरफिशियल। हाइपोग्लॉसल नर्व देखिए, तो ये है हाइपोग्लॉसल नर्व, ये रूटलेट्स हैं, ये हाइपोग्लॉसल नर्व आ रही है। टंग from here it gets supplied to all the muscle of the tongue except palatoglottis. अब यहाँ देखिए इस स्टडी also C1 फाइबर भी इसके साथ में जा रहे हैं। टंग की मसल के अलावा जो C1 की फाइबर्स हैं, हाइपोग्लॉसल तो टंग की मसल सप्लाई कर रही है। C1 फाइबर is supplied to geniohyoid muscle and thyroid muscle. Geniohyoid from general tubercle to hyoid bone, geniohyoid, and thyroid from thyroid cartilage to hyoid. तो ये दो मसल को सप्लाई कर रहे हैं। कौन? C1 फाइबर। C1 फाइबर गोज along with the hypoglossal। और C1 फाइबर ये एक चीज और देखिए, यहाँ से ये आया और C2 और C3 के फाइबर मिल करके ऐसे बनाए। इसके दो, दिस इज इंसा सर्वाइकलिस, इसके दो रूट हो गए, अपर रूट, सुपीरियर रूट, इंफीरियर रूट। अब देखिए इससे किसकी सप्लाई होती है? इंसा सर्वाइकलिस की। ये है सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहाइड विथ रूट, सुपीरियर रूट। और ये लूप जो है जिसमें इंसा सर्वाइकलिस ये सप्लाई करती है स्टर्नोहाइड, sternothyroid and inferior belly of omohyoid. Three muscles: sternohyoid, sternothyroid, and inferior belly of the omohyoid. इंसा सर्वाइकल। फिर से देखिए इसमें ये है लिंगुअल नर्व, ये लिंगुअल नर्व आ रही है, ये सप्लाई कर रही है। इसी के साथ में ये देखिए, ये ब्रांच यहाँ आ रही है थायरोहाइड के लिए, तो ये ब्रांच जा रही है जीनियोहाइड के लिए। और ये इसमें फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? वेरी फाइबर्स फ्रॉम C1, तो C1 के फाइबर के साथ आ रहे हैं यहाँ से फाइबर। बाकी हाइपोग्लॉसल ये खुद अपने फाइबर से टंग को सप्लाई करते हैं। तो ऑल मसल द टंग एक्सेप्ट हाइपोग्लॉसल। और फिर देखिए ये C1 की फाइबर्स यहाँ आए सुपीरियर रूट, और फिर C2 C3 इंफीरियर रूट, इंसा सर्वाइकलिस, इसलिए इंसा सर्वाइकलिस। Genioglossus muscle देखिए, एक्शन ऑफ द genioglossus इन स्ट्राइकिंग आउट द टंग। ये देखिए जीनियोग्लॉसस है, हम लोग टंग में डिस्कस कर चुके हैं। जीनियोग्लॉसस क्या बोलते हैं? सेफ्टी मसल ऑफ द टंग, क्योंकि ये पूरे टंग को पीछे नहीं जाने देती, आगे पुल कर देती है। देखिए ये अगर करती है तो टंग बाहर भी निकाल देती है। साइड में पुशिंग द टंग इनटू द टेस्टिंग ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व।
हाइपोग्लॉसल नर्व की टेस्टिंग कैसे करते हैं? टू टेस्ट द फंक्शन ऑफ द नर्व, द पर्सन इज आस्क्ड टू पोक आउट हिज और हर टंग. If there is a loss of the function on the one side, then unilateral paralysis. The tongue will point toward the affected side. Unilateral हो जाएगा toward the affected side. It turns. The strength of the tongue can be tested by getting the person to poke the inside of her cheek. इसकी स्ट्रेंथ के लिए कहते हैं चीक की तरफ ऐसा लगाओ, फिर बाहर से टेस्ट करते हैं. Getting the person to poke the inside her cheek, his or her cheek, and feeling how strongly he can push a finger pushed against the cheek. A more elegant way of testing than directly touching the tongue. तो यहाँ से फील कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये वीक तो नहीं है. तो tongue can also be looked at for sign of lower motor neuron disease, such as fasciculations and atrophy. Lower motor neuron disease में fasciculation and atrophy. Paralysis of the one side of the tongue result in ipsilateral curvature of the tongue. Apex towards the impaired side of the tongue. जहाँ इस साइड में paralysis है, उसी साइड में apex turn हो जाएगा. The tongue will move towards the affected side. Suppose right side, ये right side है, इधर है तो right side में turn हो जाएगा. Tongue right side में. Cranial nerve 12 is innervated. It is innervated by contralateral cortex. So a purely upper motor neuron lesion will cause the tongue to deviate away from cortical lesion. Here you can see. This is upper motor neuron. Here, this is motor cortex to the nucleus. फाइबर्स कहाँ आ रहे हैं? अपोजिट साइड से. देखिए अपोजिट साइड से फाइबर आ रहा है. अगर लीजन यहाँ होगा, अपर मोटर न्यूरॉन में यहाँ होता है, तो पैल्सी अपोजिट साइड में होगी. लोअर मोटर अगर लीजन यहाँ है तो सेम साइड पैल्सी. Hypoglossal unilateral palsy is merely troublesome, resulting in a difficulty with speech, tongue biting during mastication of the food, and difficulties in swallowing for as long as 4 months post-operatively. And bilateral palsy can pose a life-threatening situation by producing upper airway obstruction. तो अगर बाइलेटरल पैल्सी है तो इसका मतलब है टंग फाल कर जाएगी पीछे ओरोफैरिंक्स में, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी एयरवेज को ब्लॉक कर देगी. हाइपोग्लॉसल पैल्सी कैन बी ड्यू टू iatrogenic injury to hypoglossal nerve or due to lesion affecting it. एक चीज और है, एक वेन भी इसके रिलेशन में है हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ में, रेनिन वेन. रेनिन वेन इज वेना कमिटेंट ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व. देखिए ये है रेनिन वेन, ये हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ में. This vena committant of hypoglossal which begins below the tip of the tongue. Tip of the tongue से शुरू होती है. Inadvertent clamping while controlling bleeding from plexus posterior and inferior to posterior biliary, the digestive muscle, can result in hypoglossal nerve injury. तो यहाँ पर hypoglossal nerve injury हो सकती है जब इस वेन को क्लैंप करना हो, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए जब वेन क्लैंप करते हैं
तो चांसेस ये होते हैं कि ये नर्व भी कंप्रेस हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। कंडीशन अफेक्टिंग हाइपोग्लॉसल नर्व, क्या क्या ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिससे हाइपोग्लॉसल नर्व अफेक्ट हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है? मेडुलरी सेगमेंट में ऐसा क्या है? मेडुलरी सेगमेंट में ग्लायोमा, डीमाइलिनेशन, इन्फॉक्शन, ह्यूमरेज, ये सब क्लिनिकल कंडीशन है जिसकी वजह से मेडुलरी सेगमेंट अफेक्टेड हो। सिस्टर्नल सेगमेंट, सिस्टर्नल सेगमेंट एन्युरिज्म हो जाए वहां पर, बेसिलर एस्पेसिया, मेनिंजियोमा, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से सिस्टर्नल सेगमेंट अफेक्ट हो जाएगा। स्कल बेस सेगमेंट में मेटास्टेसिस की वजह से, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा की वजह से, ग्लोमस ट्यूमर, नर्व सीथ ट्यूमर, कैविटी स्पेस सेगमेंट में नोडल और एक्स्ट्रा नोडल कार्सिनोमा, मेटास्टेसिस और डिसेक्शन की वजह से कैविटी स्पेस में हो सकता है। सबलिंगुअल में कार्सिनोमा और इन्फेक्शन। So this is all about the hypoglycemia.